start with the basic things related to income tax. I prepare these lecture on the basis of the previous year analysis plus the changing scenario. That's why I put some other topics which will be expected in the upcoming exam. So first we discuss basic terms. For that you have to memorize the sections also, because in some papers I have noticed the assessment year, person, previous year sections asked in the examination. Assessment year definition in given in section 2 subsection 9. Assessment year means the year for which we are going to calculate tax liability. The year for which we are going to calculate tax liability, that particular year is called assessment year. If we are talking about the present scenario, our assessment year is 2022-23. Means this start from 1st April 2022 to 31st March 2023. Previous year means, see, in assessment year you are going to calculate tax liability for previous year. Add these things in that particular definition so that you are able to understand the concept. In assessment year we calculate tax liability for previous year. Previous year is the year on the previous year is the year for which we are calculating tax liability of the earned income. Means this is the year in which SSC or the person who is liable to pay tax, the tax liability is calculated. Suppose if we are talking about present scenario, our previous year is 2021-22. Means we are going to calculate the taxable things or tax liability of an SSC or a people who is liable to pay tax for previous year 2021-22 in the year 2022-23. Because except few cases we will pay tax on the past income or the previous income, or you can say the income earned in the previous financial year. There are some provision in which we pay tax of current year income in the current year. Later on we will discuss all those situations, but in general previous year income is taxable in the assessment year, and this previous year is again from 1st April 2021 to 31st March 2022. Whatever earned by the SSC during this particular time period, that particular income add up as per the provision of income tax, then give them exemption and deduction, and after that calculate taxable income, and according to the applicable slab calculate the tax liability of the SSC. Means in simple term you can say that assessment year is the year in which you are calculating the tax liability, and previous year is the year for which you are calculating the taxable liability, and this previous year is immediately preceding the assessment year. Definition of SSC given in section 2 subsection 7 of Income Tax Act 1961. SSC means the person who is responsible to pay tax on the earned income. There are lots of SSC. First one is person. In person, the definition of person is given in section 2 subsection 31 of the Income Tax Act 1961. Person include HUF, Hindu Undivided Family, company, firm, association of person, body of individual, local authority, artificial judicial persons. Means whenever we are using the word person in the context of income tax, it means all the SSCs who are liable to pay tax, whether they are natural person or artificial person, or you can say representative person. All the persons are liable to pay tax. There are some basic conditions, because before calculating the tax liability of an SSC, we have to first calculate the residential status of the SSC, because
incident of tax is different from different types of SSC. So first we have to calculate whether a particular SSC is resident in India or non-resident in India. If a particular SSC is resident, then find out that particular SSC is resident and ordinary resident, resident and not ordinary resident. Means broadly we can say that residential status first classified into two category, resident and non-resident, and then after that resident further classified into two category, ordinary resident and not ordinary resident. For deciding resident and not non-resident, we have to look for basic conditions. Basic conditions of residential status. For checking ordinary and not ordinary resident, we have to see additional conditions. इतना सबको क्लियर है कि पहले सबसे पहले टैक्स लायबिलिटी डिफाइन करने के लिए कि भाई हमने बात की भाई जितने भी पर्सन्स है, ऑल दी पर्सन्स लायबल टू पे टैक्स ऑन द प्रीवियस इनकम इन द असेसमेंट ईयर. बट किसकी कितनी टैक्स लायबिलिटी होगी? फॉर दैट वी हैव टू क्लासीफाई रेजिडेंट इनटू टू कैटेगरी, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट. फॉर चेकिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस द कंडीशन आर कॉल्ड बेसिक कंडीशंस. And for checking the status of resident as ordinary resident and not ordinary resident, we have to check the additional conditions. Basic conditions में कुछ exception को छोड़ के बाकी सब में choice होती है either one. दोनों में से एक condition satisfy करनी होती है और ordinary बनने के लिए both condition, दोनों की दोनों condition को satisfy करना होता है. तो in short देखिए इसको क्या condition होती है. जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर में एसएससी इंडिया में 182 डेज या उससे ज़्यादा रहा हो, यानी कि जिस भी पर्सन की आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने जा रहे हो वो पर्सन, वो इंडिविजुअल आपके देश में यानी कि हमारे इंडिया में 182 डेज या उससे ज़्यादा रहा हो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में. हम अभी टैक्स पढ़े तो हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है? 2021-22. तो जो एसएससी है वो 2021-22 में 182 डेज या मोर रहा हो, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है? प्रीवियस ईयर में वो 60 डेज या उससे ज़्यादा रहा हो और उससे पीछे के 4 सालों में, ये जो आपका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है इसमें वो 60 डेज रहा और उसके पीछे के 4 साल में, पीछे के 4 साल का मतलब है 20-21, 19-20, 18-19 एंड 17-18, उससे पीछे के यानी कि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से पीछे के 4 सालों में 365 दिन रहा हो, या तो वो 182 डेज या मोर रहा हो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, या रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में वो 60 डेज रहा हो प्लस उससे पीछे के 4 सालों में 365 डेज रहा हो, तो वो इंडिया का क्या बन जाता है? रेजिडेंट. यानी कि उसको क्या करना है? दोनों में से सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है. ओनली वन कंडीशन सेटिस्फाई बाय एनी पर्सन. तो दोनों में से यूजुअली इन जनरल दोनों में से एक करने, कुछ स्पेसिफिक पीपल है जिनके लिए सिर्फ पहली कंडीशन ही एप्लीकेबल है. तो रेजिडेंट बनने के लिए दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, बट एक्सेप्शन है इन कंडीशन का, यानी कि सेकंड कंडीशन जो है कुछ एसएससीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है. ध्यान दीजिएगा. एक्सेप्शन टू सेकंड बेसिक कंडीशन रेजिडेंट ओनली इफ दे सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशंस. यानी कि ये जो पर्सन है इनके लिए सिर्फ फर्स्ट कंडीशन अवेलेबल है. सेकंड कंडीशन यानी कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहे हो वो, ये वाली कंडीशन इन 3 टाइप के लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है. पहले वो लोग जो इंडिया के क्रू के मेंबर है, यानी कि शिप के क्रू होता है, शिप जो होते हैं उन पे उसके मेंबर है या उस पर जॉब करते हैं, तो उनके लिए इंडिया का रेजिडेंट होने के लिए पहली ही कंडीशन अवेलेबल है, उनको 182 डेज या मोर इंडिया में रहना पड़ेगा. ऐसा पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए इंडिया छोड़ के बाहर गया है,
उसके लिए भी पहले ही कंडीशन एप्लीकेबल है। ऐसा पर्सन जो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया में घूमने आया है, यानी कि इंडिया का पर्सन है लेकिन इंडिया में वो रहता नहीं है, इंडिया में वो घूमने आया है, तो उसके लिए पहली कंडीशन ही अवेलेबल है। तो इन 3 टाइप के इंडिविजुअल के लिए सिर्फ कौन सी कंडीशन अवेलेबल है? ओनली फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन इन लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। ये क्या है? सेकंड कंडीशन के एक्सेप्शन भी इनको बोलते हैं। इतना बताइए क्लियर है कि नहीं? इसको चेक करके हम डिसाइड करते हैं कि कोई पर्सन इंडिया का रेजिडेंट है या नॉट रेजिडेंट है। और दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है इन जनरल, और 3 कंडीशन एक्सेप्शन है जिसमें सिर्फ पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई करनी है। क्रू और शिप का मेंबर है या फिर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया गया है, इंडिया से बाहर गया हुआ है, इंडिया का सिटीजन है या इंडिया का ओरिजिन का पर्सन है और इंडिया में घूमने आया है। इन तीनों पर्सन के लिए सिर्फ पहली कंडीशन अवेलेबल है, दूसरी कंडीशन इनके लिए अवेलेबल ही नहीं है। इनको रेजिडेंट बनने के लिए पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। इफ एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। देन आफ्टर दैट अब कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं, वो सारी चेंजेस भी हमें याद रखने हैं। अमेंडमेंट इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 2020। 2020 में कुछ चेंजेस हुए हैं इनकम टैक्स में। ये चेंजेस जरूर ध्यान रखना क्योंकि पुरानी कंडीशन तो आप सबको ध्यान भी होंगी सबको। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैविंग टैक्सेबल इनकम ग्रेटर देन ₹15 लाख during previous year other than income from foreign sources will be treated as resident in India if period of stay in India during relevant previous year is greater than 182 days or has been in India during last 4 years greater than 365 days second for 120 days in the previous year। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अभी हमने पीछे कहा कि ऐसे पर्सन जो इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं और इंडिया में नहीं रहते हैं, वो पर्सन पहली कंडीशन 182 डेज़ की अगर सेटिस्फाई करते हैं तब ही वो इंडिया के रेजिडेंट बनते हैं। लेकिन 2020 में अमेंडमेंट करके ये कहा गया कि ऐसे पर्सन जो इंडिया के सिटीजन हैं, यानी कि इंडिया की सिटीजनशिप ले रखी है लेकिन रहते बाहर है, और उनकी जो इनकम है इंडिया से भी इनकम जनरेट कर रहे हैं वो, और इनकम जो इंडिया से जनरेट कर रहे हैं वो इनकम उनकी 15 लाख से अगर ज़्यादा है, अगर उनकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो उनको रेजिडेंट ट्रीट किया जाएगा अगर वो पिछले साल 182 डेज़ रहते हैं। ये तो थी प्लस इसमें एक कंडीशन और ऐड कर दी। देखिए ये कंडीशन अभी पीछे भी बताइए पुरानी कंडीशन है। ऐसे पर्सन जो इंडिया के ओरिजिन के पर्सन है उनको 182 डेज़ और मोर सेटिस्फाई करना है, लेकिन इसके साथ अमेंडमेंट यहाँ से शुरू हुआ है और करके जो लिखा हुआ है, यानी कि पहले एक ही कंडीशन थी लेकिन अब दूसरी कंडीशन ये हो गई कि पिछले साल में जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है अगर उसमें वो 120 दिन रहे हैं और पिछले 4 साल में 365 दिन रहे हैं तो भी वो इंडिया के क्या बन जाएंगे? रेजिडेंट। एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ। बेसिक कंडीशन क्या थी कि भाई 182 डेज़ और मोर पहली कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन थी प्रीवियस ईयर में 60 डेज और उसके प्रीसीडिंग पिछले 4 साल में 365 डेज रहे हैं तो वो क्या होंगे? इंडिया के रेजिडेंट। दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। और पहले इंडियन ओरिजिन क्रू मेंबर और वो लोग जो इंडिया को एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए छोड़ के गए थे उनके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि उनको सेटिस्फाई करना था 182 डेज और मोर। बट उस 182 डेज और मोर को रिड्यूस करके क्या कर दिया गया? उनके लिए भी एक सेकंड कंडीशन बना दी। जो 60 डेज का टाइम पीरियड था उस 60 डेज को क्या बढ़ा दिया? 120 डेज। यानी कि जो सेकंड कंडीशन थी उस सेकंड कंडीशन को अमेंड करके अप्लाई कर दिया उन सारे लोगों के ऊपर कि अगर वो पिछले साल में इंडिया में 120 दिन रहे हैं और उससे पिछले 4 सालों में अगर 365 दिन रहे हैं तो भी वो इंडिया के रेजिडेंट हो जाएंगे। ये मुझे बताइए चेंज समझ आया? ये चेंज है। ये जो और करके कंडीशन लिखी है ये अमेंड हुआ है। 182 डेज पहले से ही था लेकिन दूसरी कंडीशन भी इनके लिए बना दी है। सिर्फ 60 को 120 दिन में कन्वर्ट कर दिया है और इंडियन ओरिजिन ये सिर्फ उन पे अप्लाई होगा जिनकी इनकम क्या है? 15 लाख से ऊपर है।
जिनकी इनकम 15 लाख से नीचे है उनके लिए सिर्फ पहली कंडीशन ही एप्लीकेबल है। ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे हमने बोला कि इंडियन सोर्स से होनी चाहिए, फॉरेन इनकम से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे फॉरेन इनकम का क्या मतलब है? फॉरेन इनकम का मतलब है इनकम विच एक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया एंड विच इज नॉट डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। ऐसी इनकम जो बाहर ही जनरेट हुई है, बाहर ही मिली है, इंडिया में नहीं मिली, वो सारी इनकम क्या है? फॉरेन इनकम है। अगर वो इनकम, इसके एक्सेप्शन क्या है? अगर कोई बिजनेस बाहर होता है लेकिन उसका कंट्रोल इंडिया से होता है तो वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। अभी मैं रेजिडेंशियल इंसिडेंट्स में इसको डिटेल में समझाऊंगी। यहाँ पे फॉरेन इनकम का मतलब है ऐसी इनकम जो बाहर ही जनरेट हुई है, बाहर ही रिसीव हुई है, वो इनकम फॉरेन इनकम है। लेकिन ऐसी इनकम का जनरेशन का सोर्स इंडिया से कंट्रोल नहीं होना चाहिए, या इंडिया का कोई प्रोफेशन से वो इनकम जनरेट नहीं होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि मान लो कंपनी इंग्लैंड में है और वो कंपनी इंडिया से कंट्रोल हो रही है और आप इंग्लैंड में उस कंपनी में काम करके पैसा जनरेट कर रहे हो, तो वहाँ पे ये फॉरेन इनकम का कंसेप्ट नहीं लगेगा। अगर इंडिया से कंट्रोल हो रहा है और आप इंग्लैंड में भी काम कर रहे हो तो भी वो आपकी इंडियन इनकम ही है, वो इंग्लैंड की इनकम नहीं बनेगी। सिर्फ वही फॉरेन इनकम कहलाती हैं जो बाहर की कंपनी से जनरेट होंगी और बाहर ही रिसीव्ड होंगी। अगर उनका कोई भी कनेक्शन कंट्रोल का या सेटअप का कनेक्शन इंडिया के साथ है तो वो इंडियन इनकम होंगी, उसको फॉरेन इनकम नहीं कहेंगे। ये चेंजेस है, मतलब अभी प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में अगर हम बात करें, ये मतलब 2020 में ही चेंज आया है, तो इसको थोड़ा सा स्पेसिफिकली देखना। बाकी सब कुछ अभी जो हमने पढ़ा है सारा पुराना है, जो कि 20 साल से चल रहा है। सिर्फ यही थोड़ा सा चेंजेस आया कि सेकंड कंडीशन ऐड कर दी है। देन नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज डीम्ड एज रेजिडेंट। अब ये भी फाइनेंस एक्ट 2020 में कुछ अमेंड करके डीम्ड रेजिडेंट के अंदर भी थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया है। डीम रेजिडेंट का जो क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है सेक्शन 6 सब सेक्शन 1A में। क्या कहा है? An individual being an Indian citizen having taxable income greater than 15 lakh other than income from foreign sources during previous year and he is not liable to pay tax in other country। ऐसा पर्सन जो इंडिया ओरिजिन का पर्सन है, उस पर्सन की अगर इनकम टैक्सेबल इनकम 15 लाख से ज़्यादा है और वो किसी भी कंट्री में टैक्स नहीं दे रहा, यानी कि जहाँ वो रह रहा है वहाँ पे उसकी टैक्स लायबिलिटी अगर नहीं बन रही है तो वो इंडिया का क्या बनेगा? डीम रेजिडेंट बनेगा। और वो वैसे ही टैक्स देगा जैसे इंडिया का नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स देता है, जैसे इंडिया का नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स देता है। आई एम रिपीटिंग, ऐसा पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का पर्सन है जिसकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख से ज़्यादा है प्रीवियस ईयर में और जो कहीं भी किसी भी कंट्री में टैक्स नहीं दे रहा है, वो इंडिया का डीम रेजिडेंट कहलाएगा और उसकी टैक्स लायबिलिटी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह कैलकुलेट की जाएगी। जो लायबिलिटी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की होगी वही डीम रेजिडेंट की होगी टू पे टैक्स इन इंडिया। ये बताइए क्लियर है कि नहीं? ये भी चेंजेस है, जो भी चेंजेस हुए हैं वो उनको मैं स्टार लगाती चल रही हूँ ताकि आप उनको कंसीडर करें। नेक्स्ट एडिशनल कंडीशन। अभी कंडीशन पढ़ी थी जिसमें कि हमने डिसाइड किया था कि बंदा रेजिडेंट है या नहीं है। अब कोई इंडिविजुअल जब रेजिडेंट हो गया तो रेजिडेंट होने के बाद क्या हुआ? रेजिडेंट होने के बाद उसे बताना है कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो वो चेक करने के लिए मैंने आपको बताया कि कोई पर्सन रेजिडेंट होने के बाद वो इंडिया का ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, उसके लिए क्या चेक करते हैं? उसके लिए चेक करते हैं एडिशनल कंडीशन। अब एडिशनल कंडीशन क्या होती है? टोटल स्टे इन इंडिया इन लास्ट 7 ईयर इज ग्रेटर देन 130 डेज। अगर वो, ध्यान दीजिएगा, लास्ट 7 ईयर में लास्ट 7 ईयर में 730 डेज इंडिया में रहा है तो वो क्या होगा? ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। अगर उसका किसी भी 2 प्रीवियस ईयर में आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर रेजिडेंशियल स्टेटस रहा है इंडिया का तो वो क्या होगा? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट।
लेकिन ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। एक तो पिछले 7 सालों में वो मिला के कम से कम 730 दिन रहा हो, और पिछले 10 सालों में से 2 साल वो इंडिया का क्या रहा हो, रेजिडेंट। कॉन्टिन्यूटी इज़ नॉट नेसेसरी, ऐसा नहीं है कि 2 रेजिडेंट लगातार हो सकता है कि वो पिछले 10 साल अगर लेते हैं, 1 साल में रेजिडेंट रहा हो, दूसरे साल में नॉन रेजिडेंट रहा हो, फिर नॉन रेजिडेंट रहा हो, फिर रेजिडेंट रहा हो, और बाकी सारे ईयर वो नॉन रेजिडेंट रहा हो या फिर रेजिडेंट रहा हो। एटलीस्ट 2 साल होना चाहिए पिछले 10 सालों में से। 2 साल कभी भी लगातार जरूरी नहीं है, किन्हीं भी 2 साल अगर उसने कंडीशन बेसिक सेटिस्फाई की हो यानी कि रेजिडेंट रहा हो, और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई अगर कोई करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ROR, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और जो पर्सन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता उसको बोलते हैं रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, RNOR, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इतना बताइए पहले क्लियर है कि नहीं। बेसिक में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो वो रेजिडेंट हो गया। कुछ एक्सेप्शन आपको बताया उसके बाद। अगर एडिशनल देखना है यानी कि ऑर्डिनरी चेक करना है तो ऑर्डिनरी के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी जरूरी है। अगर दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई की या एक भी नहीं की तो वो क्या होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इतना बताइए क्लियर है कि नहीं। और ये मैंने यहाँ पे जो मेंशन है ये ऑलरेडी पीछे कंसीडर कर दिया है। इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो इंडिया में विजिट के लिए आया है, जिसकी टैक्सेबल इनकम जो है 15 लाख से ज़्यादा है, फॉरेन सोर्स को छोड़ के, उसके लिए ये मैंने पीछे बता दिया, यहाँ पे मैंने आपकी रेफरेंस के लिए लिख दिया है। उसके लिए जो पहली कंडीशन है वो 182 डेज से घटा के कितनी कर दी गई है, 120 डेज एंड मोर। ये सिर्फ बेसिक कंडीशन के कॉन्टेक्स्ट में है। देन कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक, हाँ जी बेटा, हाँ जी, मतलब देखिए अगर 120 डेज से ऊपर हो गए तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर ही देगा। अगर हम 120 डेज ग्रेटर बोलते हैं इसका मतलब हम 182 से लेसर की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई 182 से ज़्यादा स्टे करेगा तो वो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर ही रहा है, दूसरी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आप 120 डेज भी बोलते हो तो उसका मतलब यही होता है कि इक्वल टू और ग्रेटर देन 120 डेज बट लेस देन 182 डेज। तो ये मेरे कई बार MCQ में कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए आपको लिख देते हैं, तो इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट भी ऐड कर दिया है कि कभी MCQ में आए तो आप उस चीज़ को भी चेक कर लो कि किस तरह से सिचुएशन को हमने करना है। क्योंकि जैसे ही 182 डेज वो आएगा ऑब्वियसली फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा, सेकंड देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट MCQ में इट में भी पॉसिबल ऐसा लिखा हो सकता है कि भाई आपका जो टाइम पीरियड है वो ग्रेटर देन 182 डेज है बट लेस देन 182, ग्रेटर देन और इक्वल टू 120 डेज बट लेस देन 182 डेज। क्योंकि जैसे ही 182 होगा यू डायरेक्टली स्विच टू फर्स्ट कंडीशन। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया हो। फर्स्ट कंडीशन हम बेसिक की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या कहती है। फर्स्ट बेसिक कंडीशन ये कहती है कि भाई अगर कोई पर्सन इंडिया में 182 डेज रहा है या उससे ज़्यादा रहा है तो इंडिया का रेजिडेंट है। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि अगर कोई पर्सन इंडिया में 60 डेज रहा है और उससे पिछले 4 सालों में 365 डेज रहा है तो वो इंडिया का रेजिडेंट है। फिर हमने कहा ऐसा पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, इंडिया में विजिट करने के लिए आया है, जिसकी टैक्स लाइबिलिटी 15, जिसकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, उसके लिए एक और कंडीशन आ गई। पहले पुराने टाइम में सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि अगर वो पिछले साल में 182 डेज और मोर रहा है तभी वो इंडिया का रेजिडेंट होगा। लेकिन 2020 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें ये कहा कि अगर कोई पर्सन पिछले साल में 120 दिन रहा है और उससे पिछले 4 सालों में 365 डेज रहा है तो वो इंडिया का रेजिडेंट होगा। ये वो वाली कंडीशन का 120 डेज है, यानी कि जो 60 को 120, अभी ये पीछे बताया था ना आपको, ये चीज़ मैंने यहाँ पे डिटेल में ही आपको बता दी है।
इन दिस कंडीशन। ये जो चेंजेस हुआ है ये वो चेंज है, क्योंकि देखिए 182 डेज रहेगा, जैसे ही वो ग्रेटर और इक्वल टू 182 डेज होगा फर्स्ट कंडीशन की तरफ स्विच होगा। तो ये जो हम कंडीशन लिखते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 120 डेज, तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 120 डेज बट लेस देन 180 डेज। ये वो लिखा हुआ है मैंने उधर, इसमें कोई चेंज नहीं आया। जो आपकी एडिशनल कंडीशन है वो सेम की सेम है, पहले भी यही थी अभी भी यही है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। और जैसे ही सेटिस्फाई कर देता है वो पर्सन क्या हो जाता है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। दोनों कंडीशन बार बार रिपीट कर रही हूँ, एडिशनल कंडीशन बोथ सेटिस्फाई करनी है। अगर दोनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं करी तो वो क्या हो जाएगा, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे देखते हैं, जितनी भी इंडियन कंपनी है वो सारी की सारी कंपनी क्या है, रेजिडेंट इन इंडिया। यानी कि इंडिया के कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी कंपनी रजिस्टर्ड हुई हैं वो सारी की सारी कंपनी क्या है, रेजिडेंट इन इंडिया। ऐसी कंपनीज जिनका जो कंट्रोल है, जो मैनेजमेंट है, वो डिसीजन मेकिंग अगर इंडिया से किया जाता है तो वो क्या हो जाएंगी, रेजिडेंट इन इंडिया। यानी कि सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जो जितनी भी इंडियन कंपनी है वो तो रेजिडेंट होती ही होती हैं। अगर हम बात करते हैं फॉरेन कंपनी की, अगर हम बात करें फॉरेन कंपनी की, मैं अपनी सिंपल बुकिश लैंग्वेज छोड़ के सिंपल बोलूँ, अगर फॉरेन कंपनी है और फॉरेन कंपनी का जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, फॉरेन कंपनी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर इंडिया से होता है, फॉरेन कंपनी का अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से होता है तो वो कैसी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी रेजिडेंट इन इंडिया। यानी कि इंडियन कंपनी तो है ही रेजिडेंट, फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर है, लेकिन उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर इंडिया से हो रहा है तो वो इंडियन कंपनी है। अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में है, उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया के बाहर से हो रहा है तो वो क्या होंगी, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। ये बताइए क्लियर है कि नहीं। देन आफ्टर दैट फर्म्स है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, जो भी और बाकी सब बच गए उनके लिए कंडीशन क्या है, उनके लिए कंडीशन सेम है कि उनका जो कंट्रोल है, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ HUF इज सिचुएटेड होली और पार्शली इंडिया, यानी कि जो HUF है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस, अगर उनका कंट्रोल पूरी तरह से या फिर कुछ पार्ट इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो इंडिया में क्या है, वो रेजिडेंट। लेकिन अगर वो पूरा का पूरा उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया के बाहर है तो वो क्या है, नॉन रेजिडेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज एक फर्म है XYZ लिमिटेड और उसका जो बिजनेस है वो इंडिया में चलता है, लेकिन उसके जो सारे पार्टनर हैं वो भी इंडिया से बाहर रहते हैं और सारी मीटिंग भी इंडिया से बाहर होती है, सारा उनका जो बिजनेस के डिसीजन मेकिंग है वो भी इंडिया से बाहर होते हैं, तो वो क्या होगा, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। तो वो नॉन रेजिडेंट की तरह सिर्फ टैक्स देगा, वो इंडिया का रेजिडेंट, वो पर्टिकुलर कंपनी, फर्म और पार्टनरशिप रेजिडेंट नहीं होगी, यानी कि रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग उसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये बताइए क्लियर है कि नहीं। ये बात क्लियर है। सी मैं ये आपको कह रही हूँ कि अगर HUF कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी टाइप की, अगर उसका पूरी तरह से कंट्रोल इंडिया से हो रहा है या कुछ पार्शियल कंट्रोल इंडिया से हो रहा है तो वो इंडिया की रेजिडेंट है और उसकी टैक्स लायबिलिटी रेजिडेंट की तरह कैलकुलेट की जाएगी। अगर किसी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया के अंदर कंपनी है लेकिन उसका 100% कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया के बाहर हो रहा है तो इंडिया की नॉन रेजिडेंट होगी, उसकी टैक्स लायबिलिटी नॉन रेजिडेंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। ये बताइए क्लियर है कि नहीं। एक सर्कुलर निकाला था नॉन रेजिडेंट के लिए, नॉन रेजिडेंट seafarer receiving remuneration salary in NRE non-resident external account maintained with Indian Bank for service resident outside India on a foreign going ship
विद इंडियन फ्लैग और फॉरेन फ्लैग नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। ये भी अमेंडमेंट है। ये क्या कहता है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है जो कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के फ्लैग के साथ बाहर ट्रिप पे गया है, फॉर्मल मीटिंग के लिए गया है, या फिर किसी और कंट्री के बिहाफ पे इंडिया का नॉन रेजिडेंट मीटिंग के लिए गया है, तो इस तरह की जो इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। तो कोई भी फॉरेन गोइंग शिप है, यानी कि बाहर किसी कंट्री में कोई शिप जा रहा है, उसमें जो बंदा है वो नॉन रेजिडेंट है, इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, वो है नॉन रेजिडेंट है, लेकिन उसकी जो सैलरी है वो इंडिया में उसने नॉन रेजिडेंट का अकाउंट मेंटेन किया हुआ है, स्पेसिफिक अकाउंट होता है ये, उसमें अगर उसकी सैलरी आती है तो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। अब क्वेश्चन में बार बार वर्ड यूज करी हूँ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो कौन होते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? ऐसे पर्सन जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब है नाना नानी भी हो सकते हैं, ऐसे पर्सन जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, जिनका बर्थ अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है, दोनों तरह की, जैसे मैंने आपको बताया मैटरनल और पैटर्नल दोनों को मिला के, तो उनको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अभी पीछे बार बार डिस्क्रिप्शन में हमने यूज़ किया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या है? ऐसे पर्सन जिनके पेरेंट्स या जिनके ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी या नाना नानी अनडिवाइडेड इंडिया में जिनका बर्थ हुआ था, उन सारे पर्सन को क्या कहते हैं हम? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस एक अलग चीज़ है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अलग चीज़ है, सिटीजनशिप अलग चीज़ है। तीनों चीज़ों को कंफ्यूज मत करना। रेजिडेंशियल स्टेटस अलग चीज़ है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अलग चीज़ है और सिटीजन ऑफ इंडिया अलग चीज़ है। तीनों में डिफरेंस समझ आ रहा है क्या है? रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल का कैलकुलेट होगा, हर साल का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है? चेंज होता है। हम कह सकते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ईच ईयर चेंज, यानी कि हर साल हो सकता है, किसी साल आप रेजिडेंट हो, किसी साल नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, किसी साल रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, किसी साल नॉन रेजिडेंट हो, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि आप इंडिया में कितने टाइम रही हैं। लेकिन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि भाई जिस पर्सन का आप स्टेटस चेक करें उस पर्सन के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में अगर पैदा हुए हैं तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। और सिटीजनशिप क्या होती है? कोई भी पर्सन एक ही कंट्री की सिटीजनशिप लेता है लीगली। इंडिया में तो ड्यूल का कंसेप्ट नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज़ में ड्यूल का कंसेप्ट है, तो वो इंडिया की भी ले सकता है और उस कंट्री की भी ले सकता है। तो सिटीजनशिप का मतलब है आप वहाँ के परमानेंट निवासी बनते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। ये बताइए क्लियर है कि नहीं? तीनों में डिफरेंस क्लियर है अच्छे से? अब देखिए बार बार मैं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनकम टैक्स के नहीं आते, लेकिन कभी कहीं से पिक कर लेते हैं, कभी कहीं से कर रहे हैं पिक कर लेते हैं। तो आपको मैं बार बार बोलती हूँ एमसीक्यू करने से पहले आपको नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू का कितना रट्टा लगा होगा। अभी मैं इकोनॉमिक्स के भी आपको शेयर करूँगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनमें आपको बिल्कुल कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, कॉमन सेंस के बेस पे भी अटैम्प्ट करने हैं। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन साथ में भी शेयर करूँगी ताकि आपको आइडिया लगे कि अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज काम करती है, कुछ अंडरस्टैंडिंग काम करती है और कुछ कंसेप्ट की ग्रिप काम करती है कि आप उस कंसेप्ट को कितना अच्छे से समझ पाए हैं। सारी चीज़ें ही मैटर करती हैं। Deemed resident under section 6(1)(a) are always considered as resident and not ordinary resident. As I told you, ये पीछे आ चुका है ऑलरेडी। जो मैंने आपको डीम रेजिडेंट की डेफिनेशन बताई वो किसके लिए थी? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिनकी इनकम ग्रेटर देन 15 लाख है, जिनकी टैक्स लायबिलिटी किसी भी कंट्री के लिए नहीं बनती है, वो इंडिया में डीम रेजिडेंट माने जाते हैं और उनकी टैक्स लायबिलिटी वैसे ही कैलकुलेट करते हैं जैसे हम रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे इंडियन ओरिजिन की बात की थी तो साइड बाय साइड ये भी ऐड कर दिया कि ये जो डीम रेजिडेंट की कंडीशन है किसके ऊपर अप्लाई होती है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिनकी इनकम क्या होती है? ग्रेटर देन 15 लाख, एज आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू। नाउ इंडियन इनकम क्या होती है और फॉरेन इनकम क्या होती है? ऐसी इनकम
ये तो टेक्निकल लैंग्वेज है, इसके अलावा सिंपल समझिए, ऐसी इनकम जो इंडिया में जनरेट हुई है और वो चाहे कहीं भी मिली हो, ऐसी इनकम जो कमाई गई है, अर्न की गई है इंडिया में, रिसीव चाहे कहीं हो, लंदन हो, यूएस हो, चाइना हो, डजेंट मैटर, कमाई वो इंडिया के अंदर गई है, उसे क्या बोलेंगे? इंडियन इनकम। ऐसी इनकम जो कहीं भी कमाई हो, चाइना में कमाई हो, जापान में कमाई हो, रशिया में कमाई हो, किसी भी कंट्री में कमाई हो, लेकिन वो रिसीव इंडिया में हुई है, उसे बोलेंगे इंडियन इनकम। यानी कि इंडियन इनकम वो इनकम है, या तो वो इंडिया में कमाई गई है, रिसीव कहीं भी हुई है, या कहीं भी कमाई है, रिसीव इंडिया में हुई है। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग वो सारी इनकम क्या होती हैं? इंडियन इनकम। और फॉरेन इनकम क्या होती है? इसके अलावा जो भी इनकम है वो क्या होंगी? फॉरेन इनकम। यानी कि कमाई भी बाहर गई है, अर्न भी बाहर की गई है और रिसीव भी बाहर हुई है, कोई कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया से नहीं है, उसका सब कुछ बाहर से हो रहा है, तो उसको बोलते हैं फॉरेन इनकम। क्योंकि जैसे ही वर्ड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फ्रॉम इंडिया आ जाता है होली और पार्शली, तो भी वो क्या हो जाती है? इंडियन इनकम। यानी कि कोई भी ऐसा बिजनेस एंड प्रोफेशन जो दूसरी कंट्री में है, लेकिन उसके मेजर डिसीजन मेकिंग इंडिया से की जा रही है, तो भी उस इनकम को क्या कहते हैं? इंडियन इनकम। इतना बताइए क्लियर है कि नहीं? ये टेबल से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। इनकम, अभी हमने बात की रेजिडेंशियल स्टेटस को 3 पार्ट में बांटा ब्रॉडली, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। ऐसी इनकम जो इंडिया में रिसीव हुई हैं, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, उसमें हर एक एसएससी टैक्स देगा, चाहे उसका रेजिडेंशियल स्टेटस ऑर्डिनरी हो, नॉट ऑर्डिनरी हो, या वो नॉन रेजिडेंट हो। कोई भी इनकम अगर इंडिया में रिसीव हुई है तो उस पर तीनों तरह के एसएससी टैक्स देंगे इंडिया में। ऐसी इनकम जो इंडिया में कमाई गई है, उस इनकम के ऊपर तीनों एसएससी टैक्स देंगे। ऐसी इनकम जो ऐसे बिजनेस या प्रोफेशन से कमाई गई है जो इंडिया से कंट्रोल हो रही है, ऐसे बिजनेस एंड प्रोफेशन जिनका कंट्रोल पार्शली और होली इंडिया से है, उसके ऊपर आपके सिर्फ रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स देंगे, नॉन रेजिडेंट टैक्स नहीं देगा। तो लर्न करने का तरीका सिंपल क्या है? ऐसी इनकम जो इंडिया में कमाई गई है और कहीं भी रिसीव हुई है, या कहीं भी कमाई गई है इंडिया में रिसीव हुई है, तीनों टाइप के एसएससी टैक्स देंगे। ऐसी इनकम जो ऐसे बिजनेस एंड प्रोफेशन से अर्न की गई है जिसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से होता है, उस इनकम के ऊपर जो टैक्स है वो रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट देंगे। या सिंपल आप याद कर सकते हो कि इस इनकम के ऊपर नॉन रेजिडेंट टैक्स नहीं देगा, बाकी दोनों टैक्स देंगे। और अदर इनकम है और किसी भी टाइप की इनकम है, उसके ऊपर सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स देगा, बाकी दोनों टैक्स नहीं देंगे। फॉरेन एसेट है, कहीं पे दूसरी कंट्री में आपकी एसेट है, उसके ऊपर आपको कोई अर्निंग होती है, तो उसके ऊपर भी आप टैक्स कौन देगा? सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और इसके साथ एक चीज़ ध्यान रखना है, पहले टैक्सेबल होता था, लेकिन अब तो बहुत सालों पहले ही चेंज हो गया था। ये पास्ट रेमिटेंस, यानी कि पिछले सालों में, पुराने सालों में आपने कोई अर्निंग की थी अदर कंट्रीज़ में, और उसको प्रीवियस ईयर में अगर आप इंडिया लेके आए हो, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देता, नो टैक्स। पास्ट रेमिटेंस का मतलब क्या बताया आपको? पास्ट रेमिटेंस का मतलब है, सपोज मैं अपने, हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो है 21-22, किसी ने 17-18 में कोई इनकम कमाई थी, इस 17-18 इनकम में सपोज ये इंग्लैंड में कमाई और वहाँ पे उस टाइम पे टैक्स दे दिया होगा, और 21-22 में इसे इंडिया लेके आया, इस इनकम को 21-22 में इंडिया लेके आया, तो 21-22 में इस इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये बताइए मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? यानी कि पास्ट में कमाई हुई इनकम जो कि आप प्रीवियसली जिस कंट्री में कमाई थी वहाँ टैक्स दे चुके हो, और प्रीवियस ईयर में इंडिया में लेके आ रहे हो, तो प्रीवियस ईयर में आप उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं दोगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देन आफ्टर दैट क्वेश्चन आते हैं एग्रीकल्चर इनकम से। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है भाई? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए एग्रीकल्चर इनकम का मतलब है इनकम ऑफ कल्टीवेटर, यानी कि फसल उगा के जो इनकम जनरेट करते हैं, लैंड होल्डर हु हैड रेंटेड आउट लैंड, या फिर
आप अपने लैंड को किसी को रेंट पे दे सकते हैं कि भाई आप लो और इस पर खेती करो और ये कमाई का इतना हिस्सा मुझे दे देना, या कुछ भी जो भी रेशो डिसाइड होता है उनके बीच में। तो दो तरह से इनकम जनरेट हो सकती हैं। रेंट एंड रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लेटिंग आउट लैंड सिचुएटेड इन इंडिया और यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। अगर आपने किसी को लैंड दे दिया है और वो पर्सन किसके लिए यूज़ कर रहा है, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रहा है, तो उससे क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर इनकम। इनकम डिराइव फ्रॉम एग्रीकल्चर और अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़, यानी कि एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड कोई मछली पालन कर रहा है, पशु पालन कर रहा है, इस तरह से फील्ड को यूज़ कर रहा है, तो भी वो एग्रीकल्चर इनकम होगी। किसी ने नर्सरी लगा ली है, किसी ने पौधे लगा लिए हैं, सेपलिंग्स लगा ली है, उसको भी क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर इनकम। फॉरेन एग्रीकल्चर लैंड एग्रीकल्चर इनकम इज टैक्सेबल अंडर IFOS। अगर आपका एग्रीकल्चर लैंड किसी दूसरी कंट्री में है तो उसकी टैक्सेबल लायबिलिटीज़ IFOS, आप सिर्फ इसका नाम याद रखना, बाकी CA में आता है, आपके में कुछ नहीं आएगा इस तरह का डिटेल, सिर्फ ये नाम पता होना चाहिए कि अगर फॉरेन में एग्रीकल्चर लैंड है तो उसकी टैक्सेबल लायबिलिटी अंडर सेक्शन IFOS UHIFOS के अकॉर्डिंग होती है। बाकी इसके डिटेल में जाने की कोई नीड नहीं है हमारे लिए। प्रॉफिट ऑन ट्रांसफ़र ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, आपका शहर में एग्रीकल्चर लैंड है और उसको ट्रांसफ़र करके किसी को आपने दे के पैसा कमाया है, क्या वो एग्रीकल्चर इनकम होगी? नो। अगर आपका अर्बन में यानी कि शहर में कोई एग्रीकल्चर लैंड है, उसको ट्रांसफ़र करके आपने किसी को इनकम जनरेट की है तो उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे एज पर अंडर सेक्शन 10, बट विल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 45। यानी कि उसको अंडर सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग, जो अंडर सेक्शन 10 में ये बताया गया है कौन कौन सी एग्रीकल्चर इनकम है, तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को अंडर सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा एज पर द प्रोविज़न ऑफ अंडर सेक्शन 45 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई कई बार हम बहुत सारी कमर्शियल खेती भी करते हैं, तो कमर्शियल खेती में कैसे डिसाइड करेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है? तो उसके लिए क्या है, एक टेबल बनाई गई है ताकि आप बेटर वे से समझें। ये भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार आया हुआ है इसका क्वेश्चन भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के एग्ज़ाम में। एग्रीकल्चर इनकम को अगर सपोज आपने रबड़ का बिजनेस किया है एग्रीकल्चर में, तो इसका इनकम टैक्स अथॉरिटी, इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि रबड़ की खेती करके अगर आप कोई इनकम जनरेट करते हैं तो उसका 65% एग्रीकल्चर इनकम है और 35% बिजनेस इनकम है। यानी कि 65% पे एग्रीकल्चर वाला सेक्शन अप्लाई होगा और 35% इनकम पे बिजनेस इनकम वाला सेक्शन अप्लाई होगा और उसके अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी। अगर आप कॉफ़ी ग्रो करते हैं, उनको कर्ड करते हैं, तो 75% एग्रीकल्चर इनकम और 25% बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये परसेंटेज आपको याद करनी पड़ेगी। अगर आप कॉफ़ी ग्रो भी करते हो, कर्ड भी करते हो, रोस्टेड भी करते हो, ग्राउंडेड भी करते हो, यानी सारा काम 100% काम कर रहे हो बिजनेस का, तो 60% इनकम जो है वो एग्रीकल्चर मानी जाएगी और 40% इनकम कमर्शियल मानी जाएगी। ये बताइए क्लियर है कि नहीं? देन आफ्टर दैट ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्री। अगर आप टी ग्रो कर रहे हो, टी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो हाँ जी बेटा, देखिए एक में तो आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ कॉफ़ी को ग्रो कर रहे हो, उसको जो ऊपर की कोटिंग है उसको हटा रहे हो, यानी कि 100% जो मार्केट में कॉफ़ी सेल के लिए आई है उसमें आपने कन्वर्ट नहीं किया, यहाँ पे आपने एक तरह से रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया है। फर्स्ट वाले केस में आपने रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया है जो कि कॉफ़ी बनाने के लिए यूज़ होता है। लेकिन अगर आप रोस्ट भी कर देते हो, ग्राउंडेड भी कर देते हो, तो वो उस पर्टिकुलर फॉर्म में हो जाता है जैसे आप बाज़ार से ख़रीद के लाते हो। तो कंपनियां क्या करती हैं, सिर्फ यहाँ से ख़रीद के उस पर अपना अपना लेबल चिपकाती हैं, अपनी अपनी कंपनी का नाम चिपकाती हैं
और अपना नाम चिपका के क्या कर देती हैं, उसे मार्केट में सोल्ड आउट कर देती हैं। तो ये डिफरेंस है। एक तो है कि आपने सेमी सेमी गुड्स दिया है, यानी कि रॉ मटेरियल नहीं है, वो आपका एक वर्क इन प्रोग्रेस वाला टाइप का काम कर दिया आपने, थोड़ा सा उस पर काम हो गया और थोड़ा सा काम उस पर बाकी है, तो उसको इसलिए उसमें परसेंटेज 75% है। और दूसरे में आपने उसे रोस्ट भी कर दिया, ग्राउंडेड भी कर दिया, आपने उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जैसा वो बाजार में रेडीली बेचने के लिए तैयार है। तो वहाँ पे कंपनियां सिर्फ आपसे खरीदेंगी, पैकिंग करेंगे और सोल्ड आउट कर देंगी। तो वहाँ पे बिजनेस इनकम इस 25% से 60% इंक्रीज कर दी जाती है, क्योंकि आपने मैक्सिमम उसके ऊपर काम कर दिया है और अकॉर्डिंगली आपको प्रॉफिट भी जनरेट होगा। और टी में इतना ज़्यादा काम होता नहीं है, तो टी के लिए तो सीधा सा फंडा है, 60% आपका एग्रीकल्चर इनकम है और 40% क्या है, बिजनेस इनकम। आई होप ये सबको क्लियर हो गया हो। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। देन आफ्टर दैट नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अभी तो हमने बात की भाई एग्रीकल्चर इनकम कैसी है, और एग्रीकल्चर इनकम फील्ड पे अगर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है तो उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। अब है ऐसी इनकम जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, वो कौन सी इनकम है। इनकम फ्रॉम मार्केट, यानी कि एग्रीकल्चर मार्केट से अगर कोई इनकम जनरेट होती है तो वो आपकी नॉन एग्रीकल्चर है, उसे एग्रीकल्चर में कंसीडर नहीं करेंगे, उसको नॉर्मल इनकम की तरह काउंट करके टैक्स लगाया जाएगा। अगर कोई स्टोन का काम है, जैसे बहुत सारे कीमती पत्थर्स वगैरह लोग घर बनाने में यूज़ करते हैं, उस तरह का एक्सट्रैक्शन का काम होता है, खुदाई का काम होके उस तरह का पत्थर फाइंड आउट किया जाता है, उसको एग्रीकल्चर में नहीं माना जाता। माइनिंग है, माइनिंग करने से जो पैसा जनरेट होता है उसकी रॉयल्टी पे करके, क्योंकि सपोज किसी एक कंपनी ने खाने खोजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, और बाकी कंपनियां क्या करती हैं, उसके ऊपर रॉयल्टी पे करती हैं और उसके ऊपर राइट खरीदती हैं कि भाई इतने साल वो उसमें खुदाई करेंगी और उसके अकॉर्डिंग वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली कंपनियां हैं जिन्होंने सर्च किए थी वो खाने, उनको पेमेंट करती है। तो है तो ये अलाइंड एक्टिविटी ही, लेकिन ये नेचर से एक्सट्रैक्ट आप कर रहे हो, फिर भी इनको आप एग्रीकल्चर इनकम में काउंट नहीं करते हो। कोई भी आप एग्रीकल्चर से जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको स्टोर करके आगे सोल्ड करते हो, बाद में वेयर हाउसिंग का काम कर रहे हो, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम में आपकी काउंट नहीं होगा। अगर आप एग्रीकल्चर के लिए वाटर सप्लाई कर रहे हो इरिगेशन पर्पस के लिए, तो भी वो आप जैसे आपने ट्वेल्व बना दिए, फार्मर को आप पानी दे रहे हो और उससे इनकम जनरेट कर रहे हो, तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। अगर आप अपने सेल्फ इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोन ग्रास ट्रीज, अपने लिए खुद के यूज़ के लिए अगर ग्रो करते हो तो वो कोई इनकम काउंट नहीं होती, उसको एग्रीकल्चर इनकम में काउंट नहीं करते। लेकिन अगर आप प्रोडक्टिव चीज़ें, यहाँ पे सेल्फ ग्रोन का मतलब है ऐसी चीज़ें जो कि आप कंजम्पशन के लिए यूज़ नहीं करते, अगर फार्मर कंजम्पशन के लिए यूज़ करता है तो उसे एग्रीकल्चर इनकम में काउंट करते हैं, लेकिन वो नॉट टैक्सेबल होती है। तो इसलिए जो मैंने नॉन एग्रीकल्चर वर्ड यूज़ किया है इसको कंफ्यूज मत करना। अगर मैं बोलती हूँ इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऐसी सारी चीज़ें जो कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए हैं उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम की तरह ट्रीट होती है टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन के लिए। लेकिन अगर आप इसको इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो भी प्रोडक्शन होती है उसको हम नेशनल इनकम में कंसीडर करते हैं। दोनों बातों में समझ आ रहा है फ़र्क। यानी कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर आपने प्रोडक्शन की है तो उस पर्टिकुलर पोर्शन को नॉन एग्रीकल्चर मान के टैक्स लायबिलिटी में कंसीडर नहीं किया जाता, उसको नॉन एग्रीकल्चर माना जाता है और उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी अराइज नहीं की जाती। अगर खाने खोदी गई हैं, कोई पत्थर है, तो उसको बिजनेस की तरह ट्रीट करके उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, तो उसके लिए टाइम टू टाइम अमेंडमेंट आते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। इनको वो फ़ायदा नहीं होता जो अंडर सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में एग्रीकल्चर की एग्जम्पशन के लिए यूज़ किया जाता है। इनको किसी भी इनकम को वो एडवांटेज गेट नहीं होगा। कोई मछली पालन कर रहे हो, फिशरीज कर रहे हो, कोई एग्रीकल्चर फर्म में जो रेमुनरेशन जनरेट कर रहा है, तो एक तरह से उसकी तो सैलरी इनकम है, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, उसको फ़ायदा नहीं होगा। अगर
इंटरेस्ट गेट कर रहे हैं रेंट करके एग्रीकल्चर लैंड को, तो वो भी आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। उस पर्टिकुलर रेंट पे, किराए पे, या उससे जो इंटरेस्ट आपको जनरेट हो रहा है या पुराना एरियर आपको गेट हो रहा है, उसमें भी आप अंडर सेक्शन 10 की प्रिविलेज जो फ़ायदे हैं एग्रीकल्चर इनकम के, भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री होती है, वो सारे फ़ायदे आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे अगर इस टाइप की इनकम है तो। ये बताइए क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? ये दोनों में फ़र्क आ रहा है। जो हमने पहले लिस्ट बताई है एग्रीकल्चर इनकम की, वहाँ पे जो एग्रीकल्चर इनकम है उस पर अंडर सेक्शन 10 की जो प्रिविलेज है इनकम टैक्स की, वो उनको गेट होती हैं। बहुत सारी इनकम जो है टैक्स फ्री हो जाती हैं, तो वो सारी प्रिविलेज वहाँ पे गेट होती है। लेकिन अगर ये जो लिस्ट हम बात करें नॉन एग्रीकल्चर इनकम की, यानी कि ये फील्ड से या नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड इनकम जरूर हैं, लेकिन इनको एग्रीकल्चर इनकम के जो टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करने के फ़ायदे हैं वो नहीं मिलते हैं। बताइए क्लियर है कि नहीं? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। देन हेड्स ऑफ इनकम। अब हेड्स ऑफ इनकम क्या क्या होते हैं? कई बार तो क्वेश्चन हेड्स ऑफ इनकम का भी 3-4 बार जगह मुझे मिला प्रीवियस ईयर में, बहुत बार आया हुआ है ये भी। इसमें सिर्फ हेड्स ऑफ इनकम बताने हैं। तो मेनली 5 तरह के हेड होते हैं: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशन है, जहाँ पे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशन है, इनकम मिल रही है, सैलरी मिल रही है, वेजेस मिल रहे हैं, वो सारी इनकम कहाँ ट्रीट होती है? इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे के इनकम कमाते हो, अगर हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आती है, तो वो इनकम कहाँ ट्रीट होती है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप बिजनेस करते हो और बिजनेस करके इनकम जनरेट करते हो, या कोई आपका फ्रीलांसिंग का वर्क है, प्रोफेशन है, तो वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में चार्ज होगी। कैपिटल गेन में क्या होगी? अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, आपके पास कोई लैंड है, आपके पास कोई मशीनरी है, उस मशीनरी को बेचकर जो आप प्रॉफिट और लॉस गेन करते हो, उस प्रॉफिट एंड लॉस को आप कहाँ चार्ज करेंगे? कैपिटल गेन। स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल गेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है: शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अलग अलग टाइप की एसेट के लिए अलग अलग है। जब डिस्क्रिप्शन करेंगे तो हम आपको बताएंगे किन को शॉर्ट टर्म काउंट करते हैं और किन को लॉन्ग टर्म। हर अलग टाइप की एसेट के लिए अलग टाइप का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड होता है। इसके अलावा जो इनकम इन चारों हेड में काउंट नहीं हुई, वो सारी इनकम क्या हो जाती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लाइक इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसेस, इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग, इनकम फ्रॉम लॉटरी, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन। तो सारी ऐसी चीज़ें इनकम जनरेट फ्रॉम द इंटरेस्ट, यानी कि कोई डिबेंचर खरीद के उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको गेट हो रहा है, तो वो क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। किसी कंपनी के आपने शेयर खरीदे हुए हैं, उस शेयर के ऊपर आपको डिविडेंड मिल रहा है, वो भी क्या होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इतनी बात क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में हम इनकम फ्रॉम सैलरी से स्टार्ट करेंगे, और सबसे बड़ा सैलरी ही है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उसमें अलाउंसेस एंड प्रिक्विजिट्स होगा। बाकी सब तो छोटे छोटे ही हैं, एक दिन में 2 कवर होंगे, लेकिन सैलरी पूरा एक दिन पूरा कंज्यूम करेगा। तो इसलिए अब आपको पता है कि टारगेट क्या है। अगर आप पहले से थोड़ा सा ओवरव्यू लेके आओगे तो आपको और बेटर वे से समझ आएगा, और आप अपने अच्छे से डाउट भी पूछ सकते हो। स्टिल आपने पहले नहीं पढ़ा तो लेक्चर के बाद ज़रूर पढ़ लीजिए, ताकि साइड बाय साइड अपने सारे डाउट आप क्लियर करते चलिए। एमसीक्यू मैं आपको मंडे तक शेयर कर दूंगी। अगर मैंने मंडे तक नहीं किया तो कोई भी मुझे मैसेज करा के रिमाइंड कर देना। अदरवाइज़ मुझे याद है मैंने रिमाइंडर लगाया हुआ है, थोड़े से 2-4 क्वेश्चन उसमें मुझे ऐड और करने हैं लेटेस्ट, उनको ऐड करके मैं पूरा माइक्रो और मैक्रो का आपके साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर करूँगी। पूरा एक बार गो थ्रू होना और उन एमसीक्यू को ट्राई करना, और देखो कितने क्वेश्चनों के आप आंसर कर पा रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ द
नोट्स प्रोवाइडेड बाय मी। तो उसमें सारे प्रीवियस ईयर भी होगा, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के, प्लस एडिशनल क्वेश्चंस भी होंगे। इफ एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क।